বড় মালা দিয়ে অভ্যর্থনা সমর্থন জানানো হচ্ছে। একটা জোরে হাততালি হবে, এই হাততালি দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। আজকে আমরা অঙ্গীকার করতে হচ্ছি শ্রমিকদের হক অধিকারের জায়গা বুঝে নেওয়ার জন্য। মিডিয়াকে জায়গা দাও। যারা মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন এই বড় মালা দান করার জন্য, বড় মালা দিয়ে আমরা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলাম। প্রধান অতিথি বর্গকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। প্রধান অতিথি মাননীয় সাংসদ দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে উত্তরীয় ব্যাজ ও ফুলের বুকে দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবেন রাষ্ট্রীয় প্রভারী ভারতীয় রেল মালগুদাম শ্রমিক সংঘের মিস্টার কুমার মনোরঞ্জন জি। মিস্টার কুমার মনোরঞ্জন জি মাননীয় সাংসদ প্রধান অতিথি দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে উত্তরীয় ব্যাজ ও ফুলের বুকে দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবেন। মঞ্চে যারা যে সকল সদস্য ফুলের বুকে এবং উত্তরীয় ব্যবস্থা করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলা, রানুগোপাল মন্ডল আমাদের হাতে অত সময় নেই, ওগুলো নিয়ে বাদিকে দাঁড়িয়ে থাকুন। প্রধান অতিথি মাননীয় দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে উত্তরীয় ব্যাগ ও ফুলের বুকে দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবেন ভারতীয় রেল মালগুদাম শ্রমিক সংঘের রাষ্ট্রীয় প্রভারী কুমার মনোরঞ্জন জি। ऑफिशियल तो साइड चले सकते हो, साइड चले लो। हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं साइड से। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी মহাশয়কে উত্তরীয় ও ফুলের বুকে দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবেন মিস্টার কাশীনাথ রায়। জোরে হাততালি হবে। রাষ্ট্রীয় প্রভারী কুমার মনোরঞ্জন জি মহাশয়কে উত্তরীয় ও ফুলের বুকে দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবেন মিস্টার শানু কর্মকার। কাশীনাথ রায় মহাশয়কে উত্তরীয় ও ফুলের বুকে দিয়ে সম্মানিত করবেন মিস্টার কাঞ্চন কুমার সাহা। মিস্টার কাঞ্চন কুমার সাহা। শানু কর্মকার মহাশয়কে উত্তরীয় ও ফুলের বুকে দিয়ে সম্মানিত করবেন মিস্টার অমিতাভ গাঙ্গুলি। তালিটা ইনস্টলমেন্টে হচ্ছে কেন? তালিটা কন্টিনিউ হোক, তালিটা বন্ধ হবে না। ধন বেগা মহাশয়কে উত্তরীয় ও বুকে দিয়ে সম্মানিত করবেন মিস্টার সঞ্জয় মজুমদার। মনমোহন শেট্টি মহাশয়কে উত্তরীয় ও বুকে দিয়ে সম্মানিত করবেন মিস্টার হরিদাস সর্দার।
মাননীয় রাজীব ঘোষাল মহাশয়কে উত্তরীয় ও বুকে দিয়ে সম্মানিত করবেন মিস্টার প্রদীপ মণ্ডল। যেহেতু সময় কম, আজকে একটা হিস্ট্রি ক্রিয়েট হবে এখানে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে শত ব্যস্ততার মধ্যে দিয়েও রাষ্ট্রীয় প্রভারী কুমার মনোরঞ্জন জি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। গতকাল যে কাজে লিপ্ত ছিলেন সেখান থেকে সরাসরি আজকে উনি এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আর মহামন্ত্রী সম্বন্ধে বলতে গেলে সে কথা বলা শেষ হবে না। জীবনের একটা অঙ্গ হানি হয়ে যাওয়ার পরেও 1998 সালে থেকে আজকে 2022 সাল পর্যন্ত উনি লড়াই সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে ওনারা কি বার্তা বহন করে নিয়ে এসছেন ওনাদের মুখ থেকেই আমরা এখানে শুনবো। তো ওনাকে ডেকে নেওয়ার আগে দুটো কথা না বললেই নয়। আপনাদের সামনে যিনি বলতে আসছেন তিনি আর কেউ নন, ভারতীয় রেল বালুরঘাট শ্রমিক সংঘের मंच पे उपस्थित हमारे रेलवे मार्ग गोदाम के श्रमिकों की समस्याओं को लेकर हमेशा एक अभिभावक के रूप में हम सब के वर्तमान सांसद हमारे श्री दिलीप घोष जी हिंदुस्तान के प्रत्येक माल गोदाम डिवीजन जोन पर राष्ट्रीय महामंत्री जी का राष्ट्रव्यापी दौरा के समय आज खड़गपुर डिवीजन में रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के दिलों में बसने वाले, रेलवे माल गोदाम की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाने वाले हम सभी के पिता आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी, मंच पे उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे काशीनाथ गायन जी, सामू कर्मकार जी, नाबू गोपाल जी, अरिजीत दास जी, कंचन साहा जी, अमिताभ गांगुली जी, रशीदुल जी, सुब्रत जी, राजीव घोषाल जी, हरिदास सरदार जी, असम से आए हुए हमारे छोटे भाई धन कुमार डेका जी, उड़ीसा के मनमोहन सेठी जी एवं तमाम खड़गपुर डिवीजन के अलग अलग माल गोदामों से उपस्थित हमारे सभी भाइयों बहनों का मैं खड़गपुर की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम सभी के लिए बहुत ही गौरव का पल है, बहुत ही आनंद का पल है कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी, जिनका इतना बड़ा स्वास्थ्य समस्या किडनी की ट्रांसप्लांट करने के बाद भी वो घर में बैठे नहीं, हम सभी के सपनों को साकार करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रव्यापी दौरा पर निकल चुके हैं। ऐसे महापुरुष हमारे ऐसे पिताजी को हम चरण वंदन करते हैं और भगवान से ऐसा प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को ऐसे पिता के रूप में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी हम लोग को मिले। आपको पता है पिछली बार हमारी कलकत्ता में कार्यक्रम हुई थी जिसमें हमने आपको इस देश के यशस्वी श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी से जो हमारी बैठक हुई उसके बारे में हमने आपको उसमें बताया था। हमने ये भी बताया था कि हमारे पूरे भारत के माल गोदाम के श्रमिकों का जो पंजीकरण हुआ है
उसका पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर सब कंप्लीट कर करके हम लोग को जल्द से जल्द सरकार के पास जमा करना है, ताकि हम लोग जो इतने दिनों से लंबी लड़ाई लड़े हैं आप सब लोग के हाथों तक पहुंचने का काम है। राष्ट्रीय महामंत्री जी ने राजगीर के उस कन्वेंशन सेंटर में एक घोषणा किए थे कि हम देश के सभी माल गोदाम, सभी डिवीजन जोनल स्तर पर पहुंच कर करके माल गोदाम के मजदूरों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के मैं डीआरएम और जीएम के साथ बैठक करके जो भारत सरकार के द्वारा आपको मिला है उसको तुरंत इस व्यवस्था को, और जो आप दैनिक रूप से जो समस्या आपको महसूस होता है उस दैनिक समस्या को जड़ से खत्म कर करके और रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को हाथों को मजबूत किया जाए, उनको संगठित किया जाए, उनके हक अधिकारों को लेकर उनको जागृति हो। ऐसे जो हमारे माल गोदाम के मजदूर बचे हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिनका दस्तावेज कंप्लीट नहीं हुआ है, राष्ट्रीय महामंत्री वहां पहुंच करके अपने बेटों को एक सूत्र में पिरोने का काम करें, उनको जागृत करके उनको हक अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए आगे बढ़े, ये मंशा लेकर के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी पूरे हिंदुस्तान के दौरे पर निकले। हम लोग धन्यवाद है कि हमारे पिता जिन्होंने 1998 में ये सपना देखे कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का पूरे हिंदुस्तान में पहचान होगा, वो भी गर्व से कह सकेगा कि मैं भी रेलवे माल गोदाम में कर्मचारी के रूप में काम करता हूं और भारत सरकार के संविधान में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का नाम भी अंकित होगा। तो मैं इस बड़े पुण्य काम के लिए राष्ट्रीय महामंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो सपना 1998 में अपने रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को दिखाए थे, आज वो पूरा होने के कगार पर पहुंचने का काम हुआ। साथियों, समय बहुत कम है, हमारे सांसद महोदय जी की भी आगे कार्यक्रम है, इसलिए अपनी भाषण को छोटा करते हुए मैं इस बात को इस मंच के माध्यम से आपके बीच रखना चाहता हूं कि राष्ट्रीय महामंत्री जी के दौरा के उपरांत हम लोग एक बड़ा सा महासम्मेलन करेंगे। उस महासम्मेलन का नेतृत्व हमारे आदरणीय सांसद अभिभावक श्री दिलीप घोष जी करेंगे और हम सभी लोगों का प्रयास होगा, प्रयास ही नहीं पूरा भरोसा है, उस महासम्मेलन में हमारे बीच में देश के श्रम मंत्री, रेल मंत्री और गृह मंत्री भी आने का काम करेंगे। उसमें हम लोग पूरे हिंदुस्तान का एक एक श्रमिक उस महासम्मेलन में पहुंच करके अपनी संगठन की अखंडता और संगठन की ताकत को परिचय देने का काम करेंगे। इसके लिए आज इस खड़गपुर धरती से मैं आप सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि संगठन के इस मंजिल के पहुंचने में जिस तरीके से आप लोगों ने अपना खून पसीना लगाया है, संगठन ने जहां भी आवाज दी वहां तक पहुंचने का काम किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रीय महामंत्री जी के दौरा के उपरांत जो हमारा महासम्मेलन होगा उसमें जो हमारे 6 लाख मजदूर पूरे देश में काम करते हैं उसमें कम से कम 5 लाख लोग महासम्मेलन में पहुंचने का काम करेंगे। पहुंचने का काम करेंगे कि नहीं आप लोग? हाथ उठा करके मुझे और राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद लोगों को भरोसा दिलाइए कि हम लोग पूरी ताकत के साथ एक एक व्यक्ति महासम्मेलन में पहुंच करके अपनी ताकत अखंडता को दिखा करके और भारत सरकार को अपना परिचय देने का काम करेंगे। यही बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सभी। অসংখ্য ধন্যবাদ ভারতীয় রেল মালগোদাম শ্রমিক সংঘের রাষ্ট্রীয় প্রভারী কুমার মনোরঞ্জনজি এতক্ষণ যে বক্তব্য দিয়ে গেলেন। আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের একদম যে দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছি, যেখানে আমার আপনার প্রত্যেকের সহযোগিতা দরকার সেটা কিন্তু উনি আদায় করে নিয়ে গেছেন। আমরা প্রত্যেকেই কথা দিয়েছি, তাই উনার এই বক্তব্যের জন্য কি হওয়া দরকার, একটা জোরে হাততালি। এইবার যেদিন সূর্যটা ভোরবেলায় উঠেছিল, প্রত্যেক দিনই ওঠে তার নিজের মতো করে, সেদিন নতুন সূর্য উঠেছিল। ভারতবর্ষে কর্মরত সমস্ত মালগুদামে, রেলের মালগুদামে শ্রমিকদের জন্য সেই সূর্য উঠেছিল 1998 সালে।
সেই 1998 সালে এই সূর্য প্রথম যার মধ্যে দেখা দিয়েছিল তারই আরেক নাম বাংলায় বলতে গেলে অরুণ। তো ভারতীয় রেল মালগুদাম শ্রমিক সংঘের কর্ণধার আমাদের মহামন্ত্রী, আমাদের পিতা তুল্য, যিনি পিতার মতো করে তার সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য একটা অঙ্গহানির পরেও কিন্তু পিছপা হয়ে থাকেননি। সেদিনে চোখ সোজা রেখে শিরদাঁড়া সোজা করে লড়াই করে গেছিল, আজও কিন্তু তিনি সেই লড়াইয়ের সাক্ষী হিসেবে থাকছেন। তো উনাকেই ডেকে নিচ্ছি মঞ্চে, আপনাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য উনি কতটা চিন্তিত আর কিভাবে সুপরিকল্পিত ভাবে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যাই। সো প্লিজ হেল্প ইউ ওয়েলকাম। ও আমাদের মধ্যে আরেকজন উপস্থিত হয়েছেন মাননীয় তাপস মিশ্র মহাশয়। উনাকে সম্মানিত করার জন্য, উত্তরীয় ও বুকে দিয়ে সম্মানিত করার জন্য আমি মিস্টার শানু কর্মকারকে আহ্বান জানাবো। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন মিস্টার তাপস মিশ্র মহাশয়, জেলা সভাপতি। बहुत लड़ाई करने के बाद सन 1998 साल से उन्होंने लड़ाई शुरू किया। जो लड़ाई भारतीय रेल मालगुदाम में काम करने वाला हर श्रमिक के लिए, जो लड़ाई उनका हक के लिए, जो लड़ाई उन्होंने रात दिन करते हैं, जो मालगुदाम में धुलाई का काम करते हैं श्रमिक लोग, जो वहीं से 67% प्रॉफिट इंडियन रेल को देते हैं, उन लोगों के भलाई के लिए कोई सोचा भी नहीं, सपना देखा भी नहीं। जिन्होंने ये सपना देखा था, जिन्होंने ये सोचा था, उन्होंने आज हमारे बीच में उपस्थित हो गए। उन्होंने और कोई नहीं, उन्होंने भारतीय रेल मालगुदाम श्रमिक संघ का राष्ट्रीय महामंत्री मिस्टर अरुण कुमार पासवान जी, उन्होंने अपने साथ हमारे सामने आ गए। आज उन्होंने हम लोगों को दिखाएंगे काल क्या होने वाला है, कैसे हम लोग का मकसद में पहुंच जाए। सो प्लीज हेल्प यू वेलकम, सो प्लीज हेल्प यू वेलकम मिस्टर अरुण कुमार पासवान जी, स्टैंडिंग वे। Give me a big hand also. आज के सभापति हमारे भाई, बड़े भाई और बंगाल का टाइगर आदरणीय लोकसभा सदस्य दिलीप घोष जी, हमारे अतिथि जिला अध्यक्ष तापस जी, हमारे पुत्र मनोरंजन कुमार जी राष्ट्रीय प्रभारी, हमारे पुत्र काशी विश्वनाथ जी, हमारे पुत्र अशोक जी, हमारे पुत्र सुरेश जी, हमारे पुत्र विनोद जी, महेश जी, देखा जी एवं तमाम उपस्थित भारतीय रेलवे मालगुदाम श्रमिक संघ के क्रांतिकारी साथियों, मेरे बेटों, मेरे पुत्रियों, मेरे लोग, आप जान रहे हैं भारतीय रेलवे मालगुदाम श्रमिक संघ का राष्ट्रव्यापी दौरा हो रहा है। यह दौरा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये तमाम सारी बातें आपको हमारे राष्ट्रीय प्रभारी और हमारे भावी प्रेसिडेंट बंगाल काशी विश्वनाथ जी एवं तमाम उनके लोगों ने आपको बताने का काम किया होगा। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, भारतीय रेलवे मालगुदाम श्रमिक संघ विगत 98 से आपकी लड़ाई लड़ते आ रही है। हम लोगों को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2003 में
त्रिपक्षीय बैठक हुई थी, जिसमें भारतीय रेलवे मार्ग विकास सर्वेक्षण ने भारत सरकार से डिमांड करने का काम किया था। साफ सुथरी हमारा मांग था, लेकिन भारत सरकार ने उस समय के तत्कालीन श्रम मंत्री की अध्यक्षता में डॉक्टर साहब जी वर्मा के नेतृत्व में रेल मंत्रालय और श्रम मंत्रालय और सर्वेक्षण के बीच में समझौता हुआ था। हमारी डिमांड साफ था, लेकिन भारत सरकार ने उस समय हमें 14 डिमांड की मंजूरी दी थी, लेकिन वो तमाम व्यवस्थाएं आप तक नहीं पहुंची। उसमें कई कारण था। लोकल समस्या, दलालों की समस्या, लुटेरों की समस्या, तमाम ऐसी समस्या के कारण हमारे जो डिमांड मिला था यहां तक नहीं आया था। और उसमें एक बात, रेल सरकार गठबंधन में नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, उन्होंने कह दिया वर्मा जी को कि माननीय श्रम मंत्री वर्मा जी, आप क्या 14 डिमांड हम दे रहे हैं रेलवे मार्ग गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को, आप एक अपनी तरफ से आई कार्ड इशू कर दें। वाह, आई लेबर कार्ड इशू करने की बात हुई थी। उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कार्ड दे देंगे, और मंजूरी दस्तावेज हमको मिल गया। मिलने के बाद संजोग ऐसा हुआ कि सरकार चली गई और हमारा डिमांड जो मिला हुआ था, लेबर कार्ड जो विचार कोड में शामिल हुआ है, उसमें नहीं हो सका। बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हम लोगों ने फिर भी लड़ाई लड़ते रहे। वो लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोगों ने, जब भारत सरकार ने फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सरकार बनी, भारत सरकार में, तो हम लोगों ने यह प्रस्ताव रखा और तमाम बीजेपी की लीडर लोग हैं जो हमारे लड़ाई में, धरना प्रदर्शन में भाग लेते थे। इसलिए भारतीय रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों का देखा अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वहां हमारी बातों को रखने में कठिनाई नहीं हुई। इसलिए आपको आज होगा, हम लोग यह संघर्ष 2003 से करते रहे कि जो डिमांड हमारा है वो लागू होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों की पहचान पत्र मिलना चाहिए। तो भारत सरकार ने ये निर्णय लिया और तय किया कि हम तमाम हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों का ही कार्ड देंगे। आपको याद होगा, यहाँ से कई लोग हम लोगों ने महाधिवेशन में भाग लेने का काम किया था, जिसमें माननीय रेल राज्य मंत्री राजन गुहाई, तत्कालीन उस समय रेल राज्य मंत्री राजन गुहाई थे, उन्होंने आपके तमाम हिंदुस्तान से लगभग 7 लाख लोग महासम्मेलन में उपस्थित हुए और उसके सामने उन्होंने भारतीय रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को QR कार्ड लागू किया था। QR कार्ड दिया था कि नहीं रेल मंत्री? दिया था कि नहीं? दिया था नहीं। उसके बाद अचानक हमारी तबीयत खराब हो गई और पूरे हिंदुस्तान का भार आपके राष्ट्रीय प्रभारी मनोज कुमार के कंधे पर चला गया और हमें इतना विश्वास नहीं था कि छोटा सा बच्चा अपने बाप और मजदूरों की सपना पूरा करने के लिए अपने जान की बाजी लगा देगा। और इसे 3 बार कोरोना हुआ, फिर भी आपके लोगों के लिए, अपने बाप की सपना पूरा करने के लिए दिन रात काम करता रहा। उसका परिणाम स्वरूप हुआ कि जब 4 वोट लागू हुआ, उसने भारतीय रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों छूट गया था। लेकिन आपने राष्ट्रीय प्रभारी की मेहनत से, लगन से और तमाम हिंदुस्तान के लोग जो है उनके आशीर्वाद और प्रेरणा से और आपके एमपी माननीय दिलीप घोष जी के मदद से उसने 4 कोड में भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्वेक्षण का नाम अंकित किया गया कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले लोगों को 4 कोड में शामिल किया गया। आपको याद हो
भारत सरकार बीजेपी की सरकार है और वह बीजेपी का सरकार में ही क्वेश्चन करना था, सवाल करना था रेल मंत्री से, श्रम मंत्री से, तो आपको आज होगा। सवाल करने वाला भी बीजेपी का एक ही था और सवाल का जवाब देने वाला भी बीजेपी का मंत्री था, वह था जगदम्बिका पाल। मैं इस मन से माननीय जगदम्बिका पाल जी को भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे तमाम मजदूरों की बातों को रखने का काम किया, सबसे अंतिम व्यक्ति को लड़ाई में शामिल करने का काम किया, इसलिए उनको भी मैं बार बार वंदना और अभिनंदन करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, आप जानते हैं कि हमें किडनी फेल हो गया था और किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। हमारी बेटी ने किडनी देने का काम किया और तमाम हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे डॉक्टर, हमारे बच्चों, सब लोग हमको मना करने का काम करता है कि आप राष्ट्रव्यापी दवा नहीं करें। तो हमने कहा कि मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे लोग, जब हमारे दादाजी जिंदा नहीं रह सके, हमारे पिताजी जिंदा नहीं रह सके, जिसको हम और तुम भगवान मानते हो, राम हो या कृष्ण हो, रहीम हो या करीम हो, वाहिगुरु जी हो या कोई भी हो, जब वो इस धरती पर नहीं रह सके, हम और तुम क्या रहोगे? देखिए, जब तक रहना है तो अच्छा काम मजदूरों के लिए, जिसको हमने सपना दिखाया है, जिसके लिए हमने सोचा है, उसका रिकार्ड दिलाते दिलाते ही अगर चले जाए तो कोई कम की बात नहीं है मेरे दोस्तों। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अभियान जितना जल्दी हो सके आपका मांग और डिमांड, आपका बच्चा का खुशहाली जो भारत सरकार ने हमें दिया है, श्रमिक भवन वो बन जाए, मेडिकल का सुविधा दिया है वो बन जाए, मैं तमाम सुविधाएं आपको मिल जाए। और जो विभाग में आप काम करते हैं, जैसे 4 कोड में 1 कोड ऐसा है कि हर विभाग में जो आदमी काम करता है उसी विभाग में ज्वाइनिंग लेकर दिया जाए, तो आप लोग को ज्वाइनिंग हो जाए, ताकि यहाँ का ठेकेदार, यहाँ का पट्टेदार, यहाँ का रंगदार कोई भी हमारे बेटों को दिक्कत ना दे सके, तकलीफ ना दे सके। इसलिए ये सब काम कराने के लिए हमको राष्ट्रव्यापी दौरा करना पड़ रहा है। खास करके दौरा करने के लिए आप जानते हैं भारत सरकार लेबर कार्ड दे रहा है, तो उसे कैसे प्रतीत होगा? यही आदमी इधर के माल बनाने काम कर रहा है, वह कोई भी आदमी बना देगा। इसलिए भारत सरकार और श्रमिक संघ ने एक समझौता किया है कि रेलवे माल गोदाम का जो QR कार्ड है और लेबर कार्ड दोनों को लिंक करना है। क्या करना है? लेबर कार्ड और QR कार्ड को लिंक करना है। उससे स्पष्ट हो जाएगा कि आदमी रेलवे माल गोदाम में काम करता है। दूसरी बात, बहुत से तमाम लोग गलत प्रचार करते हैं, बहुत से ठगने का काम करते हैं। आपको सावधान रहना है, ऐसे लोगों से श्रमिक संघ के नाम पर कोई आपको दगा न दे सके, आपको ठग न सके। इसके लिए यहाँ काशी विश्वनाथ है, तमाम लोग हैं, ऐसे लोगों से संपर्क कीजिए। अगर कहीं से कोई बात आता है, अपने लीडर से, अपने राष्ट्रीय प्रभारी से, हमसे, आप अन्य MP साहब से संपर्क कर सकते हैं। और किसी के बहकाव में नहीं आना है, किसी के छलाव में नहीं आना है, अपने हक अधिकार को पाना है। इसलिए लेबर कार्ड और QR कार्ड को अभिनव लेकर आना है। हो जाएगा जी, एकदम दिन कराना है। सब लोगों को लेबर कोड और QR कार्ड से लिंक करा करके जिस दिन आप तमाम मजदूर का लिंक कर दीजिएगा, उसके अनुसार सरकार का घोषणा है। आप वही अब उसको पढ़िए। लेबर चार्ट कोड दिया गया है,
उसमें चौथा कोड जो है वो आपका है, प्रश्न आपके लिए है, वो आपके लिए बनाया गया है और आप जल्दी से जल्दी इसको माने किसी प्रकार से क्यूआर गया है तत्काल उसको बनाने का काम कीजिए और बनाने से उसको ठीक करने का काम करें, समझ गए? इसलिए मैं अब आपसे विचार करना चाहता हूँ, माननीय संसद महोदय आपके बीच बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातों को रखेंगे। স্যার তার মনের কথা কিভাবে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো, এত শরীর খারাপের মধ্যে দিয়েও উনি এতক্ষণ ধরে সে কথা বলে গেলেন। আমার মনে হয় ওনার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দেওয়া উচিত। আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিন, প্রত্যেককেই রিকোয়েস্ট করছি প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিন। এত শরীর খারাপের মধ্যে দিয়ে উনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে, আমরা কিভাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবো সেটা পরিষ্কারভাবে উনি এখানে বলে গেলেন। এবার মাননীয় সাংসদ দিলীপ ঘোষ মহাশয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। আমাদের যে দীর্ঘদিনের লড়াই, সেই লড়াইয়ে উনি এখানে দিলীপ বাবু মহাশয়কে আমরা বলবো ওনার কিছু মূল্যবান বক্তব্য বলার জন্য। প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়ে ধন্যবাদ সবাইকে। বসুন। আজ এই গরমের মধ্যে একটা হলে আমরা একত্রিত হয়েছি, সবাই ঘুরে আছেন। এমনিতে আমরা শ্রমিক, সারা দেশকে আপনারাই চালাচ্ছেন। বিশ্বের কয়েকটি উন্নয়নমুখী দেশের মধ্যে 2 বা 3 নম্বরে আমাদের রেলওয়ে আছে। আর সেই রেলওয়ের মাধ্যমে সারা দেশে মাল পৌঁছে যাচ্ছে আপনাদের হাত ধরে। আর সবসময় আপনাদের পরিশ্রম, আপনাদের লড়াই, গায়ে সবসময় ঘাম লেগে থাকে। সেটা ঘাম দিয়ে আপনারা পরিশ্রম করে দেশকে চালাচ্ছেন, আপনাদের অভিনন্দন। গতকাল গণেশ চতুর্থী হয়েছে, তার অভিনন্দন সবাইকে। আজকে সম্মেলনে আমাদের রেল মজদুর আর মালগুদাম শ্রমিক সংগঠন তার সর্বভারতীয় মহামন্ত্রী মাননীয় অরুণজি, তাকে আমি খড়গপুরে স্বাগত করি। তিনি অসুস্থ শরীর নিয়ে এখানে এসেছেন আপনাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য। তিনি আমাদের সংগঠনের অভিভাবক, তাকে স্বাগত করছি। যুব নেতা সর্বভারতীয় প্রভারী মনোরঞ্জন কুমারজি, তিনি এসেছেন আমাদের পশ্চিমবাংলা এবং এই জোনের এলাকার যারা নেতৃত্ব করছেন সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই। হাজার হাজার শ্রমিককে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের অধিকারের রক্ষার জন্য লড়াই করছেন। এই যে সংগঠন, এর স্বীকৃতি হোক, নিত্য প্রতিদিন বাড়ুক। কোনায় কোনায় যেমন রেল গুদাম, মাল গুদাম যে শ্রমিক সংগঠন চলছে, তার যে কার্যকর্তা পরিশ্রম করে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, ফলে এই সংগঠনের বিস্তার হয়েছে। এর বিস্তার হোক। সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রমিকরা বহু বছর ধরে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন, বাড়ি বাড়িতে রেশন পৌঁছে দিয়েছেন, এখনো চলছে। এত বড় একটা সিস্টেম, লক্ষ লক্ষ রেশন দোকানে রেশন পৌঁছচ্ছে। দেশের এক জায়গা থেকে এক জায়গায় আনাজ খাদ্যবস্তু পৌঁছে